آج کی صبح بہت حسین تھی، خاص کر وفا کے لیے۔ وہ کسمسا کر اٹھی تو اپنے آپ کو اسفندیار کی باہوں کی مضبوط گرفت میں پایا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جسے اسفند نیند میں بھی اس کی حفاظت کر رہا ہو کہ کوئی وفا کو اس سے جدا نہ کر دے۔ آج کئی سالوں بعد وفا کو اتنی گہری سکون کی نیند میسر ہوئی تھی، ورنہ وہ تو آج سے پہلے بھول گئی تھی کہ نیند کسے کہتے ہیں۔ اس نے پہلے اپنے ارد گرد اسفند کی گرفت دیکھی اور پھر ایک نظر اسفند کو، جو خود سے سکون سے اسے تکیہ سمجھ کر اتنی زور سے سینے میں بھینچ کر سویا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا تو اسفند نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ اس نے مشکوک آنکھوں سے اسفند کو دیکھا کہ آیا وہ سچ میں سویا ہے یا محض اسے تنگ کر رہا ہے، مگر اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر وہ کھوئی گئی تھی۔ بند آنکھوں پر لمبی پلکیں، تمہاری اتنی لمبی پلکیں کیوں ہیں؟ اس نے سوتے ہوئے اسفند یار کی پلکوں کو ہلکے سے چھو کر محسوس کرتے کہا۔ پھر اس کی نظر اس کی مغرور گھڑی ناک پر گئی، جس پر اس نے کالج میں کبھی غصہ نہیں دیکھا تھا، مگر جب بھی وہ وفا کے لیے لڑتا غصہ اپنی ناک پر سجائے رکھتا۔ وفا نے اس کی اونچی مغرور ناک کی ٹپ کو چوما۔ اسفندیار کے دل میں گدگدی سی ہوئی، وہ جو وفا کے کسکنانے پر اٹھ گیا تھا۔ وفا کی کارروائیوں کو اپنی ترچھی آنکھوں سے دیکھتے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے احاطہ کیا۔ وفا کو لگا جیسے اسفند مسکرایا ہو۔ اس نے غور سے اسفند کو دیکھا، جس کا چہرہ سیکنڈ میں سپاٹ ہوا تھا۔ وفا نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلا کر دیکھا، کہیں وہ جاگ تو نہیں رہا۔ اسفند کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوتے دیکھ کر اب اس کی نظر اسفند کے لبوں پر گئی تھی، جو سختی سے آپس میں بوس تھے۔ کس نے سوچا تھا کہ مجھے تم سے یوں پیار ہو جائے گا؟ تمہاری پناہوں میں آ کر میں دنیا بھول بیٹھوں گی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اپنی زندگی کو ایک لفظ میں بیان کرو تو میں یقیناً تمہارا نام لوں گی، اسفند۔ وفا نے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھوں پر ٹھوڑی ٹکاتے اسے جانثار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اسفند کا بند آنکھوں سے دل کیا کہ وہ اس کی خوبصورت لبوں کو معطر کر دے، جس نے اتنا خوبصورت اور دلکش اظہار کیا تھا، جو وفا اس کے اٹھنے ہونے پر تو کبھی نہ کرتی۔ وہ ابھی بھی ویسی پڑا رہا، وہ وفا کے دل کی باتوں کو جاننا چاہتا تھا۔ اور پھر آتے ہیں یہ لب، اس نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے لبوں پہ ہلکے سے پھیرتے کہا۔ اسفند یار کی رات کی جنون خیزیاں سوچ کر اس نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ شکر ہے وہ ابھی سویا تھا، ورنہ وفا کا شرم سے گلنار چہرہ دیکھتا تو پتہ نہیں کیا کرتا۔ دل کرتا ہے ان لبوں کو۔ وفا سے شرم کے باعث بولا نہ گیا تو اپنے لب دانتوں تلے دبا گئی، جبکہ جو اسفند اس کی بات سے سننے کے لیے بے چین تھا، اس نے وفا کی کمر پر گرفت سخت کرتے اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا، اور وفا کو لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ اٹھا ہوا ہے، بس جان کا سوتا بن رہا ہے۔ اسفند کے بچے جھوٹے، کہیں کہ تم جاگ رہے تھے؟ اس نے اسفند یار کے سینے پر مکوں کی برسات کرتے کہا، جس پر اسفند یار کا کب سے ضبط کیا ہوا قہقہہ چھوٹا تھا۔ وفا منہ بسرتی ہوئی کمفرٹ میں چھپ گئی تھی۔ یہ وہ کیا کہنے چلی تھی؟ اس کا دل کیا شرم سے ٹوٹ مرے۔ وفا میری جان، چھپ کیوں رہی ہو؟ میں آگے بھی سننا چاہتا ہوں کہ تم میرے لبوں کو کیا۔ اس نے شرارت سے وفا کو چھیڑتے ہوئے بات چھوڑی، جو وہ اندر گھسی تھی۔ چھونا چاہتی ہو نا؟ اس کی بات مکمل کرنے پر وفا کمفرٹ کے اندر سے جھنجھلائی، یہ جھوٹ ہے، ہاں ہاں۔ اسفند کا اپنی معصوم بیوی کی شرم دے کر پھر قہقہہ نکلا تھا، مگر اب کی بار وہ وفا کو کمفرٹ سے باہر نکالنے کی جدوجہد بند کرتا خود کمفرٹ میں گھسا تو وفا ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اس نے بغیر وفا کی پرواہ کیے اس کے لبوں کو شدت سے اپنی دستر میں لیا، جبکہ وہ اس کا کندھا دبوچ کر رہ گئی۔ کچھ ہی منٹوں میں اس نے وفا کی سانس سکھا دی تھی۔ وہ ہٹا تو وفا گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میری بیوی کوئی خواہش کرے اور اسفند پوری نہ کرے، یہ تو اس جہاں میں ممکن نہیں۔ اسفند یار نے دھیمے سے کہتے اس کے سر کے ساتھ سر ٹکرایا تو وہ اس کے سینے میں چھپ گئی، جس پر اسفند نے زیر لب مسکراتی اس کے بالوں کو چوما۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ پہلے وفا فریش ہو کر آئی اور پھر اسفند۔ اب وہ دونوں نیچے جانے کے لیے تیار تھے۔ وفا نے ہلکے نیلے رنگ کا کلیوں والا فراک زیب تن کیا ہوا تھا، کانوں میں جھمکے اور لائٹ پنک لپسٹک لگائے، بالوں پر نیلا ہی دوپٹہ ٹکائے وہ نیچے جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس نے آئینے میں خود پر آخری نگاہ ڈالی تو اپنے پیچھے نمودار ہوتے اسفند یار اپنے ایک ساتھ دکھتے عکس پر نظر ٹھہر سی گئی۔ پرفیکٹ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اس نے وفا کو اپنی جانب مڑا اور جھک کر اس کی نک کو لبوں سے چوما، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ٹھٹکا۔ اسفند، تم نے تو میری جھولی کو خوشیوں سے بھر دیا، مگر میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے پائی۔ وفا نے افسوس سے سر جھکاتے ہوئے کہا، دے سکتی ہو نا؟ اسفند نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ وفا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھتے پوچھا۔ او ماڑا، ام کو ہمارا پہلا والا وفا لوٹا دو اور ماڑا ام خوش ہو جائے گا، ام کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ اسفند نے وفا کے پرانے لہجے میں ایک اسٹائل سے وعدہ لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو وفا کھلکھلا کر ہنسی۔ ہمارا وعدہ ہے لالا کی جان، ام تم کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک چاہے گا اور پہلے جیسا بن جائے گا۔
اس نے بھی اپنی ازلی انداز میں واپس آتے سینے پر ہاتھ ٹھوکتے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرتے کہا اور اسے سر ٹکرایا، جس پر وہ دونوں ہی جی جان سے ہنستی اور نیچے کی طرف بڑھے تھے جہاں وفا کی فیملی ناشتہ لے کر موجود تھی۔ نیچے زریاب اور سحر کو دیکھتے وفا ان کے گلے لگ کر ملی اور اسفند بھی زریاب سے گلے لگ کر ملا۔ وہ سب وہیں بیٹھ گئے جب نعیمہ بیگم نے انہیں ناشتے کے لیے بلایا۔ وہ سب ناشتے کے ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے جب وفا کی نگاہ اجالا پر گئی جو یکٹک زریاب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وفا کی اب تک اجالا سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی لیکن اب اس کو زریاب کی طرف دیکھتے پا کر وہ ٹھٹکی تھی۔ کچھ تو تھا جسے وہ لاعلم تھی مگر کیا؟ اسفند جو وفا کو کچھ کہنے لگا تھا اسے ایک ہی جانب دیکھتے پا کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اجالا کو زریاب کو بڑی گہری نظروں سے دیکھتا پا کر وہ بھی ٹھٹکا۔ اس نے وفا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ٹھیک ہوگا اشارہ کرتے اسفند کو مطمئن کیا مگر وہ جانتا تھا وفا کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے جو بعد میں جاننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ولیمے کا انتظام بہت شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ اسفند نے سب کچھ اپنی نگرانی میں کروایا تھا۔ مومن 2 دن سے لاپتہ تھا جبکہ شازیہ وفا کو اتنی اہمیت ملتی دیکھ کر جل کڑ رہی تھی۔ اس سے اپنے گھٹیا زائم اجالا کو بھی شامل کر لیا تھا۔ اب وہ دونوں کیا چالیں چلتی سبھی اس سے بے خبر تھے۔ ایک دم لائٹس آف ہوئی اور سپاٹ لائٹ میں اسفند اور وفا کی بہت خوبصورت انداز میں انٹری ہوئی۔ ان کے ارد گرد شعلہ بازی شروع ہو چکی تھی جبکہ وفا سلور گرے میکسی میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی جو اس وقت سب کی نگاہ کا مرکز تھی، جو اپنے شہزادے اسفندیار کے ساتھ چلتی شانہ بشانہ اسٹیج تک پہنچی جہاں سرخ پھولوں کی پھوار نے ان کا استقبال کیا۔ ان دونوں کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ دونوں بار بار ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تو سب زور و شور سے ہوٹنگ کرتے جس پر وفا جھٹ نظر ہٹاتی جبکہ اسفند کھسک کر اور وفا کے پاس ہو جاتا۔ ایسے ہی مزہ مستی میں خوبصورت فنکشن کا اختتام ہوا اور وہ سب حویلی واپس لوٹ آئے۔ یہ اگلے دن کی بات ہے جب اسفند اور وفا ناشتے کے لیے ٹیبل پر نیچے آئے۔ آج تو مومن بھی ان میں موجود تھا مگر اس کا حال دیکھنے سے ہی کافی برا لگ رہا تھا۔ سرخ سجی ہوئی آنکھیں، قمیص کے بٹن کھلے ہوئے، بخار کی شدت سے سرخ چہرہ اس کی اندرونی حالت چیخ کر بیان کر رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر ضبط نہ کرتے اٹھنے لگا تو شازیہ نے کس کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرا اور اسے اٹھنے نہ دیا جبکہ ان تینوں کے بیٹھتے ہی نائلہ بیگم جو کہ قاسم کی موت کا قصوروار وفا کو سمجھتی تھیں تلملا کر اٹھی۔ بس بہت ہو گیا بھائی صاحب، میں اپنے بیٹے کے قاتل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی، نکالیں اسے باہر۔ نائلہ بیگم نے تن فن کرتے ثاقب صاحب کو کہا جو خود بھی اسفندیار کی شادی سے خوش نہیں تھے۔ اسفندیار نے سر اٹھا کر انہیں غصے سے دیکھا جبکہ سب کھانے سے ہاتھ روک چکے تھے۔ ایک وفائی تھی جو آرام سے ناشتہ کر رہی تھی جسے کسی اور کی بات کی جا رہی ہو۔ وہ مزے سے جوس کا گلاس پیتی اسفندیار کے لیے بھی ڈال گئی جو پھوپھو کو کچھ سخت کہنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وفا کے انداز پر وہ ٹھٹکا تو مطلب پرانی وفا واپس آ گئی تھی۔ وفا نے اپنا وعدہ وفا کر دیا تھا لیکن پھر سب سمجھ کر خود بھی مزے سے ناشتہ کرنے لگا جیسے ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی ہو ہی نہ ہو۔ کبھی وہ ایک دوسرے کو کچھ پاس کرتے کبھی کچھ جبکہ نائلہ بیگم خود کو نظر انداز کیے جانے پر آنکھ ہی لگ گئی۔ بھائی دیکھ رہے ہیں آپ میری تو اس حویلی میں کوئی عزت ہی نہیں، کہنے کو تو میں اس گھر کی بیٹی ہوں مگر اہمیت آپ اس کل کی آئی لڑکی کو دے رہے ہیں۔ انہوں نے ٹسوے بہاتے کہا تو تینوں بھائی انہیں دلاسا دینے لگے۔ اب تو ان کا بیٹا بھی نہیں رہا تھا، وہ تینوں ہی ان کا سہارا تھے۔ مجھے نہیں پتا بھائی، اسے نکالیں ورنہ میں خود دھکے مار کر اسے نکالوں گی اپنی حویلی سے۔ اس سے پہلے کہ اسفند کچھ کہتا وفا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرتے سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسفند تم ناشتہ کرو، لوگوں کی باتوں پہ دھیان مت دو، ویسے بھی آنٹی کی عمر ہو گئی ہے، کچھ بھی بولنے لگی ہیں۔ میں نے ان کی فضول ترین باتوں کا مائنڈ نہیں کیا، ویسے بھی میں کون سا اپنی حویلی چھوڑ کر کہیں جا رہی ہوں۔ ہاں اگر کسی اور کو میرے یہاں رہنے پہ اعتراض ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ اس کی اتنی صاف بے عزتی پر عشل کا ایک دم کہکما نکلا تھا جو وہ کھانسی میں چھپا گئی جبکہ نائلہ بیگم تن فن کرتی اس کے پاس آئیں۔ تیری اوقات کیا ہے لڑکی، تجھے 2 منٹوں میں نکال سکتی ہوں اپنی حویلی سے اگر ایک دفعہ بھی زبان چلائی تو، انہوں نے تیز لہجے میں کہا۔ وفا نے ان کے اتنے تیز بولنے پر اپنے کان میں انگلی پھیری جیسے ان کی آواز اسے ناگوار گزری ہو۔ آرام سے ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ان کے مقابل آئی۔ اس کا انداز صاف مذاق اڑاتا تھا جس پر نائلہ بیگم کا منہ آہن سا سرخ ہوا۔ بہو مت بھولو وہ پھوپھو ہیں سب کی اور تم سے عمر میں بڑی ہیں، تمہیں انہیں کچھ بھی کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ثاقب صاحب اس پر گرجے تو نائلہ بیگم خوش ہوئیں۔ آپ سے تو میں بعد میں بات کرتی ہوں، پہلے ان سے 2 ہاتھ کر لوں تو جی پاپے کٹنی او سوری پھوپھو جی میری زبان پھسل گئی۔ آپ بتائیے حویلی کس کی ہے؟ وفا نے ایک بار پھر ان کی عزت کی دھجیاں بڑے میٹھے مگر تلخ لہجے میں اڑائی تھی۔ میرے بھائیوں کی اور کس کی؟
उन्होंने घूर से गर्दन अकड़ाते कहा, क्या वाकई? इसने दिलचस्प अंदाज में पूछा तो साकिब साहब गौर गरूर से बोले, ये हवेली इस गांव के सरदार मोमिन खान की है और किसी में इतनी जरूरत नहीं कि वो मेरी बहन को यहाँ से निकाल सके, मगर हम ज़रूर गुस्ताख लोगों को निकाल सकते हैं। साकिब साहब ने इसे देखते हैं तो मैंने क़ैज़ी लहजे में धमकी दी कि वो जब चाहे इसे निकाल सकते हैं। वफ़ा ने आईब्रो उचकाकर इनके अंदाज को देखा और इन्हें दाद दी। वाह! वो बिल्कुल इनके सामने वाली कुर्सी पर आई जहाँ उमर बैठा था। उमर प्लीज़। इसने उमर से थोड़ी देर के लिए इसकी कुर्सी मांगी जो बिल्कुल साकिब साहब के सामने थी। श्योर भाभी, वो ये कहता अपनी जगह खाली करता उठा और वफ़ा इसकी जगह पर साकिब साहब की आंखों में आंखें डाले ऐन इनके सामने बैठ गई। असलम भी इसकी शाहाना अंदाज देखकर दिलचस्पी से सीधा हो बैठा। अब इसकी बीवी क्या गुल खिलाने वाली है? तो क्या कह रहे थे कि आप मुझे और मेरे शौहर को जब चाहे इस हवेली से निकाल सकते हैं? वफ़ा ने उँगली घुमाकर इस हवेली की तरफ इशारा किया। कोई शक? साकिब साहब ने तंज़िया लहजे में बोले। शक नहीं, बिल्कुल यकीन करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपको जिसने भी इत्तला दी है कि इस हवेली का मालिक मोमिन है, ये गलत इत्तला है। तस्दीक की जाए चचा जान अपनी। इसने साके साहब को तंज़िया चचा जान चबाते हुए कहा, जिस पर साके साहब तैश में आकर खड़े हुए। मतलब क्या है तुम्हारी इन बातों का लड़की? मेरा पर ज़द मत आज़माओ कि तुम्हें इस हवेली से धक्के मारकर बाहर निकालूँ। उन्होंने मुँह से झाग उड़ाई। नईमा बेगम जो कुछ कहना चाहा तो असफर ने मुस्कुराते हुए खामोश रहने का इशारा किया तो वो मखमसे का शिकार हुई। वफ़ा साकिब साकिब निकलने वाली बात पर तमस्कराना मुस्कुराई। क्या वाक़ई किसी में इतनी हिम्मत है कि वो मुझे इस हवेली से निकाल सके? इसने एक आबरू उचकाते तंज़िया कहा तो साकिब साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उन्होंने धारते हुए मोमिन को वफ़ा को हवेली से बाहर निकलने कहा जो बुत बना बैठा था, जिसकी मोहब्बत अब ज़िंदा हुई थी, जब वफ़ा की मोहब्बत दम तोड़ गई थी। अरे वो कौन होता है मुझे निकालने वाला? क्या मोमिन तुम भी? ना, तुमने इन सबको बताया नहीं कि अभी तक? वफ़ा ने दोनों कोनियाँ मेज़ पर रखा हथेलियों पर अपना मुँह टिकाते मासूमियत से आँखें टिपटिपाते पूछा। तो मोमिन इतने माह बाद इसके यूँ सीधा इससे मुख़ातिब होने पर खुशगवार हैरत में डूब गया, जबकि साकिब साहब इसके साथ सभी हवेली वाले हैरत से मोमिन को देखने लगे जो वफ़ा में खोया था, जबकि असफन भी नासमझी से वफ़ा को देख रहा था। वफ़ा मोमिन से क्या पूछ रही थी, वो खुद भी इस बात से अनजान था और जानना चाहता था। जब वफ़ा साकिब साहब के सामने आती और बोली, इस हवेली से मोमिन तो क्या कोई भी मुझे नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसने तमस्खराना हंसी हंसते साकिब साहब का मजाक उड़ाया जो आंखें फाड़े मामला समझने में लगे थे। मोमिन ने आप सबको बताया नहीं कि इस हवेली का असली मालिक वो नहीं, मैं हूँ, वफ़ा असफंदियार खान। इसने अपने सीने पर दस्तक देते कहा तो साकिब साहब पीछे को लड़खड़ाए। ये झूठ है। असफंदियार भी सबकी तरह हैरत का शिकार था। सभी हैरत ज़दा था कि मोमिन ने जायदाद वफ़ा के नाम क्यों की। होगा मोमिन इस गांव का सरदार, मगर इस हवेली की असली मालकिन मैं हूँ और इसकी वजह आपका बेटा है, चाहे तो पूछ सकते हैं आप इससे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मोमिन ये क्या कह रही है? सबसे बड़ा सदमा तो शाजिया को लगा था, जबकि मोमिन खामोशी से निगाहें झुकाए बैठा था। मोमिन बदबख्त, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जो ये लड़की बोल रहे हैं वो महज़ एक बकवास के सिवा कुछ नहीं। साकिब साहब मोमिन का गिरबान पकड़कर धाड़े। ये सब सच है बाबा जान, इसने इनकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो उन्होंने मोमिन को रखकर एक थप्पड़ रसीद किया। बदबख्त, तूने हमारा आबो अजवात की मेहनत को पल भर में दो कौड़ी का कर दिया और इसे किसी बाहर वाली के नाम कर दिया, हमसे मशवरा तक ना किया। वो बेबसी से बोले, मोमिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ज़रूर इसने तुमसे धोखे से साइन लिए होंगे। ये हवेली सिर्फ हमारी है। ए लड़की, कागज़ात वापस कर। नाइला बेगम चील की तरह वफ़ा पे छिपटी और जिन्हें असफंदियार ने बीच में ही रोक दिया था। चचे बुरा लगा, दर्द हुआ, मुझे भी होता था जब आप लोग मुझसे नौकरों से भी बदतर सलूक करते थे, मगर कहते हैं ना वक्त एक सा नहीं रहता, तो अब भी वक्त बदल चुका है। इस हवेली की हुक्मरान मैं हूँ, जिसे चाहे चुटकियों में बाहर निकाल सकती हूँ, इसने चुटकी बजाते कहा। मगर निकालूंगी नहीं, वरना आप में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा, इसने इन्हें तमस्खर से तक देखते हुए कहा। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, मेरे शौहर को खूबसूरती के जाल में फंसाकर जायदाद लूटी है तुमने, हम तुम पर केस करेंगे। शाजिया इसके सामने तनफन करती आई और इसका हाथ भींचते हुए कहा, खुशफहमी है तुम्हारी, मुझे तुम्हारे शौहर को जाल में फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि मेरा खुद का शौहर इस काबिल है कि मेरी हर मुँह से निकलने वाली ख्वाहिश को झट पूरा करते रहे। रही बात जायदाद की, तो आप सब मुझ पर कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लाट साहब मोमिन खान ने पूरी अदालत समेत जज साहब के सामने कागजात पे साइन करते पूरे होश और हवास में जायदाद मेरे नाम की थी, और इसके गवाह तो चचा जान आप खुद भी हैं, वफ़ा ने शाजिया को झटकते कहा। वफ़ा के मुंह से सारी सच्चाई सुनने के बाद वो कुर्सी पे ढा गए। अब कहने को कुछ ना बचा था, क्योंकि साकिब साहब के सामने ही मोमिन ने भरी अदालत में वफ़ा के दिए गए पेपर साइन किए थे।
कहा था ना मोमिन, सोच समझ के साइन करना, मगर यू आर बैड लक, बाजी पलट गया। इसने पलट कर मोमिन को आहक मारते कहा, जो यूं अपने बेवकूफ़ बनने पर गुस्से से वहाँ से निकलता चला गया। फिर वो शाजिया के पास आई, जो मालकन से नौकरानी बनने के सदमे में थी। अफसोस हुआ तुम्हारे लिए, तुम तो खुद को मलका समझ बैठी थी, मगर अफसोस औकात तुम्हारी नौकरानी से भी कई गुजरी है। इसने शाजिया को जलाते इसका शाना थपके कहा, जो सुर्ख मुंह के साथ इसे कच्चा चबाने वाली नज़रों से देखने लगी। ओह, मैं तो डर गई। इसने इसकी खौनखार नज़रों को देखकर डरने की एक्टिंग करते कहा, तो असवद का कहकमा निकला था, ये जायदाद मेरी किसी काम की नहीं, मैं इसे ताया जान के हवाले कर देती, मगर मुझे यकीन है कि इसके बाद इनकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। इसने इब्राहिम साहब की तरफ देखते हुए कहा, ना बाबा ना, असवन आज हमने आउटिंग पर जाना था ना, चलो चलें। असवन भी उठ के इसके पास आया और निकलने लगे, जब ईशल भी झाँक कर इनके पास आई। क्या बात है जीजू, जाने की इतनी जल्दी है, वो भी अकेले अकेले? उमर और मैं भी साथ चल रहे हैं। इसने शरारत से असवन यार को छेड़ देखा, जिस पर वो उसे घूर कर रह गया। इससे पहले कि वो वफ़ा को देखता इन्हें साथ ले जाने से मना करता, वफ़ा कंधे उचका कर इशल के साथ बाहर निकल गई। उमर बाहर गाड़ी में वेट कर रहा है। वफ़ा ये कहते ही ये जा वो जा। असवन यार मुँह खोले से जाता देखने लगा। इसका मतलब है ये इसकी बीवी की मिलीभगत हुई। अब जाते हुए इसे मुड़े पकड़ तो उँगलियाँ दिखाते विक्ट्री का इशारा कर रही थी। वो भी बिना देर किए लबहार लपका। जबकि इनके जाने के बाद पीछे सब अपना टूटा दिल लिए कमरे में बंद हो गए, जबकि नायला बेगम का बयान जारी था। वो चारों होटल के ओपन एरिया में बैठे ऑर्डर का वेट कर रहे थे, जब ईशल ने वफ़ा से पूछना शुरू किया, वफ़ा ये जायदाद का क्या माजरा है? तुमने बाजी पलटी तो पलटी कैसे? मैं तो अब तक हैरान हूँ। ईशल ने आंखें बड़ी करते पूछा, तो वो खिलखिलाकर हंसी, जबकि बाकी तीनों ने इसे गौर से सुनने लगे। जब मोमिन ने मुझसे माफ़ी मांगी थी तब मैंने इससे कुछ प्रॉपर्टी पेपर साइन करवाए थे, जिनमें खुला के पेपर्स भी थे। मैंने मोमिन को कहा था कि वो होशो हवास में पेपर साइन करे, मगर इसकी बदकिस्मती के कह ले या हमारी खुश किस्मती के इसके हवा इस वक्त इतने मुअत्तल थे कि इसने धड़ाधड़ पेपर से साइन करके खुद को ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। और जहाँ तक बात है प्रॉपर्टी की, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसे बाबा जान असवजार के बाबा इब्राहिम के नाम करवा चुकी हूँ, मगर हवेली वाले इस बात से अनजान ही रहेंगे ताकि बाबा जान की जान को कोई ख़तरा ना हो। वेल डन, उमर ने तालियां बजाते कहा, तो इसने सर तस्लीम खम करके दाद वसूल की। असवन यार भी इसे भी गहरी नज़रों से देख रहा था। क्या? वफ़ा ने अनजान बनते पूछा। वफ़ा, इस प्रॉपर्टी पे तुम्हारा हक था, तुमने इस प्रॉपर्टी को पापा के नाम क्यों लगाया? असवद ने इसे गहरी नज़रों से देखते पूछा। क्योंकि हम में से कोई अलग नहीं, कोई पराया नहीं, हम सब एक हैं, तो चाहे मेरे नाम हो या बाबा के, एक ही बात है। वफ़ा ने कुछ और कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। वफ़ा, वैसे एक बात है कि जब तुमने फुप्पो को पापा कुटनी कहा तो मुझे बहुत मज़ा आया था, ईशल ने कहकमा लगाते कहा, जबकि असवद और उमर से घूर कर रह गए, क्योंकि थी तो वो भी इनकी फुप्पोई ना। जबकि ईशा ज़बान दाँतों तले दबा कर रह गई और वफ़ा का कहकमा गूंजा था। उमर, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शाज़िया और नाज़िया कहीं से भी तुम्हारी बहनें नहीं लगती। ईशा ने इसे छेड़ते हुए कहा, वैसे ये बात भी कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बीवी तो तुम भी मेरी कहीं से नहीं लगती। कहाँ मैं मासूमा, कहाँ तुम्हारी टट्टर करती ज़बान। इसने भी दुबुदू जवाब दिया, जिस पर ईशल तलमिला कर रह गई, जबकि इसकी बात पर सर इन सब का मुश्तरका कहकमा गूंजा था। मोमिन आज फिर डेरे पे शराब पीकर मदहोश पड़ा था। गुलरुख, ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुमने मुझे धोखा दिया, वो भी मेरी नज़रों में नज़रें डालकर। इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, मैं तुम्हें इस दुनिया से छीलूंगा और तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मेरे से ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं चाह सकता, मोमिन ने गुरूर से कहा, जबकि ये भूल चुका था कि वफ़ा की मोहब्बत तो कब की मर गई थी। अब तो वो असलन यार के इश्क के रंग में रंग चुकी थी। गुलरुख, तुम्हें मेरा होना ही होगा, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद अपनी मोहब्बत जागा कर ही रहूँगा। इसके लिए चाहे मुझे तुम्हारे और अपने दरमियान तमाम दुनिया ही क्यों ना मिठानी पड़े, मैं मिठा दूंगा। और फिर असवन यार भी तुम्हें नहीं अपनाएगा, जबकि मैं तुम्हें शान से कबूल करूँगा, वो भी सबके सामने। इसने नशे में चूर अपनी मनसूबाबंदी तय कर ली थी, मगर वो अल्लाह के कामों से अनजान था। असवन, तुम्हें याद है ना, कल हमने अम्मी के घर जाना है मुकाबले की रस्म के लिए? जी जान असवन, मुझे सब कुछ याद है, कभी हम भी आपकी बातों को भूल सकते हैं, मगर आप हमें ज़रूर भूल रही हैं। इसने वफ़ा का हाथ खींचकर उसको अपने ऊपर गिराया। वफ़ा हल्की सी चीख मार के इसके ऊपर गिरी और दोनों हाथ इसके सीने पर रखकर खुद को उठाना चाहा, मगर असवन ने इसे अपनी मोहब्बत भरी गिरफ्त में ले लिया था और उस पर झुकता चला गया, यहाँ तक कि इसने तमाम रोशनियाँ बुझा दी और चाँद इनको देखकर मुस्कुराने लगा। मगर किस्मत एक और आजमाइश लेकर खड़ी थी।
शाजिया जले पैर बिल्ली की तरह अंदाज में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। इसका गम कम होने में ही नहीं आ रहा था कि वफा इस पूरी हवेली की मालकिन कैसे बन सकती है। उजाला ने इसे उलझन से देखा, जो यहाँ वहाँ मार्च करती इसकी भी नजरें घुमा रही थी। क्या तुम एक जगह बैठ नहीं सकती? इधर उधर चक्कर लगाते देख कर मेरी आंखें एक जगह से हिल गई हैं, मगर अभी तक तुम्हारी टांगों में पानी नहीं पड़ा। उजाला ने उगताए हुए लहजे में शाजिया पर तंज किया। तुम इतनी आराम से क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें कुछ नहीं करना चाहती? कैसे तुम वफा को इस पूरी हवेली की मालकिन बने हुए देख सकती हो? तुम हाथ पर हाथ धरे बैठकर इतना जल्द कैसे हो सकती हो, जबकि बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी है। शाजिया चबा चबा कर बोली, यही फ़र्क है तुम में और यही फ़र्क है मुझ में। तुम जज्बात से सोचती हो, जबकि मैं दिमाग से। इसने अपने दिमाग पर दस्तक देते कहा तो शाजिया ने इसे अचंभे से देखने लगी। तुम कहना क्या चाहती हो? शाजिया ने हैरत से पूछा। यही कि जितना होशियार वफा अपने आप को समझती है, इतनी वो है नहीं। एक बाजी इसने जीती है और अगली बाजी हम जीतेंगे, और वो मुंह खोले देखती रह जाएगी। ऐसा क्या सोचा है तुमने? शाजिया ने इससे दिलचस्पी से पूछा। कल वफा अपने घर जा रही है और हम परसों से मुकाबले के लिए लेने जाएंगे। लेकिन क्यों? हमें कौन लेकर जाएगा? उजाला की बात खत्म होती शाजिया ने अचंभे से पूछा। जाना तो हम दोनों को पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ना गए तो हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, और इस बात को यकीनी तुम बनाओगी और जाने का इंतज़ाम भी तुम करोगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक्टिंग में सवासेर हो। उजाला ने शाज़िया को आंख मार के कहा, वो तो मैं कर ही लूँगी, मगर हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? शाज़िया ने झंझलाते हुए पूछा। वहाँ की एक नौकरानी को पैसे देकर हम खरीद लेंगे, और इससे मैं ज़रिया आपको एक कमरे में बुलवाऊंगी। ये कह के सहर ने बुलाया है, और जब ज़रिया आप कमरे में आ जाएगा तो मैं अपने कपड़े फाड़कर इस पर ये इल्ज़ाम लगा दूंगी, इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की करने की कोशिश की, और फिर क्या है, मेरा निकाह हो जाएगा और वफ़ा के भाई पर एक और इल्ज़ाम लग जाएगा, जिससे वो किसी से नज़र मिलाने लायक नहीं रहेगी। घर में भी इसे ताने ही मिलेंगे। शाजिया के प्लान पर अश कर उठी। ये हुई ना बात। अब देखना है कैसे वफ़ा की इज़्ज़त को हम सबके सामने दो कौड़ी का करते हैं। शाजिया ने शैतानी लहजे में कहा, और मोमिन भाई तो करेंगे ही मेरा यकीन, क्योंकि इनकी बहन जो हूँ मैं, और इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इसने अपना मकरूआ मंसूबा बताते कहा, जिस पर दोनों आने वाले वक्त से अनजान हंस पड़ी, जो वफ़ा के लिए बहुत ही कठिन साबित होने वाला था। असफंद यार और वफ़ा के घर रहने आ गए थे। वहाँ खाना खाने का दौर चला। फिर असफंद ज़रियाब से बातें करने लगा। रात देर तक वो एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर असफंद वफ़ा को कमरे में आने का इशारा करता वफ़ा के कमरे में चला गया, जिस पर वफ़ा इसे ज़बान चढ़ाती रह गई, जबकि वो इसे घूर कर कमरे में चला गया। वो काफ़ी देर से वफ़ा का इंतज़ार करता रहा, मगर वफ़ाती के आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार इसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और वो कमरे से बाहर निकलने लगा। जब वफ़ा कमरे में दाखिल हुई तो इससे नाराज़गी का इज़हार करता बालकनी में चला गया, जबकि वफ़ा इसे मनाने का सोचती इसके पीछे चल पड़ी, जहाँ वो चाँद को तक रहा था। वफ़ा ने इसे पुकारा, मगर वो चाँद को तकता रहा। इसने पलट कर देखा नहीं। ये नाराज़गी साफ ज़ाहिर था। असफन वफ़ा दो कदम और आगे बढ़ गई और बोली, असफन यार, अब मेरी तरफ देखो। ये भी नहीं, इतनी नाराज़गी? असफन के दिल ने तो पहली पुकार पे इसकी तरफ हमकना शुरू कर दिया था, मगर वो दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा रहा। वो देखना चाहता था कि वफ़ा इसे किस अंदाज में मनाती है। तीसरी पुकार पे भी वो जब कुछ ना बोला, तो वफ़ा ने इसकी पुश्त को घूर कर देखा और इसके बिल्कुल करीब आकर इसके कान में झुककर बोली, असफ़ी, अगर मैं तुम्हारे इतने करीब भी आ जाऊँ तब भी नहीं बोलोगे? इसे पीछे से आकर से किस करके गले लगाते कहा। असफ़न यार के ज़ब्त की इंतहा बस यहाँ तक थी। इसने वफ़ा का हाथ खींचकर आगे करते इसे झटके से अपने सीने में भेजा और उसके लबों पर शिद्दत से झुका, यहाँ तक कि इसकी सांसें अपनी सांसों में उंडेल ली थी। यहाँ तक कि वफ़ा की सांसें सीने में अटकने लगीं। वो झटके से इससे अलग हुआ। मेरे इश्क तुमसे एक वादा हो जाता है, कभी मुझे छोड़कर मत जाना, मेरा यकीन करना करोगी ना? इसने पता नहीं किस अंदेशे के तहत पूछा। करूँगी, बेइंतहा करूँगी, और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हें पर यकीन करूँगी। वफ़ा ने इसको यकीन का मान बख्शा था, जिस पर दोनों एक दूसरे से सर टिकाए मुसर्रत से आंखें बंद कर गए। सुबह नईमा बेगम जब इशल के साथ इन लोगों को लेने आई तो इनके साथ शाजिया, मोमिन और उजाला को देखकर वो सब हैरान थे, मगर उन्होंने पूछना ज़रूरी न समझा। वो सब खाना खा रहे थे जब उजाला ने जानबूझकर अपने ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक डाली और शहर के साथ गेस्ट रूम के वॉशरूम चली गई। असफंद और वफ़ा बारह बागीचे में बातें करते चहल पहल करने निकल पड़े, जबकि इशल, मोमिन और नईमा बेगम अंदर इन सब के साथ बैठे थे, जहाँ काम वाली ने ज़रिया आपको शहर के कमरे में बुलाने का भेजा पैगाम दिया।
दूसरी तरफ उजाला ने सहर को अपने लिए एक ड्रेस लाने भेज दिया और खुद कमरे की लाइट बंद करके अपनी आस्तीन का बाजू फाड़ दिया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया और उजाला की चौक पर वो हड़बड़ाकर लाइट ऑन कर गया, जहाँ उजाला को इस हालत में देखकर वो हैरान रह गया और गुस्से से फौरन चादर लेकर इसकी तरफ बढ़ा था। दूसरी तरफ असफंदियार और वफा जो बाहर चहलकदमी कर रहे थे, उजाला की चीखने की आवाज़ पर अंदर को भागे, जहाँ सब कमरे में दाखिल हुए। अंदर का मंजर देखकर वो सब हैरान थे। उजाला ने अंदर आने वाले के देख कर चीखना शुरू कर दिया था, मगर जो ही सामने वाले ने कमरा रोशन किया, उजाला के सर पर सातों आसमान टूट पड़े थे। जरियाब की जगह मोमिन को देखकर जो खुद इसकी हरकत पर हैरान परेशान खड़ा था, इसे लम्हा लगा था समझने कि कमरे में अकेली उजाला ने क्या प्लान कर रखा है। बाहर मुलाजमा का दरियाब को बुलाना, और अब ये सब इसका दिमाग घूम चुका था। वो फौरन आगे बढ़ा, गुस्से से अपने तन से चादर उतार कर उजाला पर लिपटी और इसे कस कर थप्पड़ रसीद किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी पहली गलती से सीख जाना चाहिए था, मगर तुम अभी तक नहीं सुधरी, तुफ है तुम पर। मोमिन ने इसका बाजू दबोच कर कहा। शाजिया अभी थप्पड़ से ना समझी थी कि मोमिन की फलादी गिरफ्त पर बिलबिला कर रोने लगी। इसे लगा इसका बाजू जड़ से उखड़ जाएगा। सभी अंदर आ गए थे और वो बगैर किसी की तरफ देखता इसको घसीट कर लेता निकलता चला गया। पीछे वफा भी इन सबसे माजरत करती हवेली वालों के साथ निकलती चली गई। सभी मामला समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर समझ किसी को कुछ नहीं आ रहा था। शाज़िया भी नाखून चबाए जा रही थी। उन्होंने ज़रियाब को भेजा था, फिर मोमिन वहाँ कैसे पहुँचा ये इनकी समझ से बाहर था। पता नहीं इस उजाला का क्या होगा, कहीं इसने मेरा नाम तो ना लिया हो। प्लीज़ अल्लाह मुझे बचा ले। मोमिन तो जाते वक़्त इतनी खौफ़नाक लग रहा था। वो मोही मुँह में सूरतों का विर्द करने लगी, और जब वो सब हवेली पहुँचे तो सब बड़े परेशान हॉल में खड़े थे। क्या हुआ शहनाज, मोमिन बच्ची को यूँ क्यों ले आया? नईमा बेगम ने परेशानी से पूछा। पता नहीं क्या हुआ भाभी, घर से तो सब ठीक ही निकले थे। आप बताएं वहाँ क्या हुआ जो वो इतने गुस्से में आया? शहनाज बेगम ने इससे पूछा तो उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया। 15 मिनट बाद मोमिन ने हद गुस्से में सुर्ख मुंह के साथ उजाला के कमरे का दरवाज़ा धाड़ धाड़ से बंद करता हुआ निकला और उसके सबके पास आता हुआ बोला, 2 दिन तक ना इसके कमरे का दरवाज़ा खुलना चाहिए, ना इसको कोई खाना देगा। अगर किसी ने भी मेरी बात से इख्तलाफ किया तो अपनी बुरी हालत का ज़िम्मेदार वो खुद होगा। वो गुस्से से सब पे तनफी निगाह डालकर बोला, मोमिन बेटा हुआ क्या है? शहनाज बेगम की बात पर इसके बाहर जाते कदम साकित हुआ और वो बगैर मुड़े बोला, माफ़ कीजिएगा अम्मी, अगर आपने उजाला की सही तरबियत की होती तो आज मुझे इसकी बदकिरदारी के शर्मनाक मुजाहरे किसी गैर के घर में ना देखने पड़ते, जिसे मैंने अपने आप से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहा। वो करब से कहता हवेली से निकलता चला गया। पीछे शाजिया बेगम गुमसुम खड़ी रह गईं, जबकि साके साहब के दिल में दर्द की लहर उठी थी, जिसे ज़ब्त करते हुए कमरे में बंद हो गए थे। शाजिया ने अपनी गुलो खलासी पर चैन की सांस ली। अब वो उजाला से कल ही मिलने का सोचती अपने कमरे में चली गई, जबकि असफंदियार पुरजोश नज़र से वफा को देख रहा था, जो ऊपर जा रही थी। ना ही इसने आज कुछ कहा था, ना ही किसी किस्म का रिएक्शन दिया था। 2 दिन बाद शाज़िया उजाला से इसके कमरे में मिलने आई थी, मगर वहाँ उजाला का सूजा हुआ सुर्ख चेहरा और बिखरे बाल देखकर वो भी डर गई थी। अरे उजाला, ये क्या हुआ है? किसने किया है? शाज़िया ने इसकी अबतर हालत देखते हुए कहा। इसके सवाल पर वो बहुत तमस्खराना हंसी हंसते हुए बोली, और कौन कर सकता है? तुम्हारे सामने तो भाई मुझे घसीटते हुए लेकर आए थे, और अब यहाँ कमरे में लाकर उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। शाज़िया मुझ पर, अपनी बहन पर इसने सुर्ख सुजी हुई आंखों से नफरत लिए कहा, और ये सब इस वफा की वजह से हुआ है। अगर वो मेरे सामने होती तो मैं इसे मार डालती, काश दरियाब इसका भाई ना होता। इसे नफरत से एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा, जबकि शाजिया इसकी सारी रामकथा दांतों में उंगलियां दबाए सुन रही थी। मगर मैं अब तक ये नहीं समझ सकी, जब मैंने बुलाया ज़रियाब को था तो वो मोमिन भाई कैसे पहुँचे? किसने भेजा इन्हें ज़रियाब की जगह? तुम तो बाहर ही थी ना, इनके पास क्या हुआ था वहाँ बोलो? इसने शाज़िया को झंझोड़ते हुए पागल होते हुए कहा, जो कि इसके इस तरह हाथ लगाने पर पूरी तरह हिल गई थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या पागल हो गई हो? मैं भला कैसे बता सकती हूँ? मेरे सामने तो बस मुलाज़िमा ने ज़रियाब को बुलाया था, लेकिन मोमिन के फ़ोन पर मैसेज आने से वो उठकर अंदर चला गया था। मैं नहीं जानती कि आगे क्या हुआ। शाहज़ा ने बादल नख्वास्ता सच्चाई बयान की। दोनों ही की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो अभी इसी कशमकश में थी जब वफ़ा का गला खंगारते हुए अंदर आई।
मैं कुछ कहूँ क्या? इसने मासूमियत से आँखें टपटपाते हुए पूछा। दोनों ही इसे इस कमरे में देखकर अपनी जगह से खड़ी हुई थीं। वैसे बहुत अफ़सोस हुआ तुम लोगों की ख़लीस प्लान पर पानी फिर जाने का, मगर क्या करती मैं, बात जो मेरे भाई की थी, जैसे कोई बात तो क्या कोई बुरी निगाह से भी देखे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और यहाँ तो तुम सीधा-सीधा मेरे भाई पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाने जा रही थी। अल्लाह ये कैसे बर्दाश्त करती मैंने तो तुम्हारी ही बाज़ी तुम पर पलट दी। कैसी लगी मेरी चाल? इसने इन दोनों को आँख मारते हुए ऊपर से नीचे तक जलाकर राख कर दिया था। क्या अभी भी नहीं समझे? तो मैं बताती हूँ। जब तुमने इस रात को ये प्लानिंग की थी तो मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी, और तुम लोगों के आने से पहले ही मैंने अपने मुलाज़िमों को ये बात समझा दी थी कि अगर कोई लालची लड़की आप लोगों को लालच दे तो इसके बातों में खुद मत आना और ना किसी को आने देना, और देखो उन्होंने ऐसा ही किया। इस मुलाज़िम ने दरियाब को तो बुलाया तो था, मगर तुम्हारे नहीं, शहर के कमरे में, और मोमिन को किसने बुलाया ये तुम लोग अभी भी नहीं समझ सके। चलो वो भी बताती हूँ। मोमिन को मैंने अपने फ़ोन से मैसेज किया था कि वो गेस्ट रूम में आ जाए, जहाँ तुम अपना मुकरा चेहरा लिए खड़ी थी। मकसद सिर्फ़ तुम्हें और तुम्हारे भाई को एहसास दिलाना था कि दूसरों की इज़्ज़त कितनी अहम होती है, और मेरा ख़्याल है इस वाक़ये से तुम अच्छी तरह जान गए होगे कि एक इज़्ज़त ही है जिससे इंसान दूसरों की नज़र में मुक़ाम हासिल करता है। मगर तुम्हें देखकर ये लगता है कि रस्सी चल गई, मगर बल अभी भी नहीं गए। बेहतर है कि संभल जाओ, वरना घी सीधी उँगली से ना निकले तो मुझे उँगली टेढ़ी करना भी आती है। इसने शाज़िया और उजाला को तेज़ नज़रों से देखते हुए कहा, और वार्निंग देती वहाँ से निकलती चली गई। पीछे इन लोगों का वफ़ाक की बातों से अंग-अंग सुलग रहा था। जैसे ही वो उनके कमरे से बाहर निकली, असफंदियार इसे हाथ से खींचता हुआ कमरे में लेकर आया था, और उसे कमरे में लाते दीवार के साथ पिन किया और बोला, ए लड़की, क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम खूबसूरत हो? इसने वफ़ा को वल्हाना अंदाज में तकते हुए कहा। हाँ है एक सरफिराश आशिक, जिसकी नज़रें मुझे बताती कि मैं इसके लिए कितनी खूबसूरत हूँ, और यकीन मानो इसके अलावा मुझे किसी की तारीफ़ चाहे भी नहीं, क्योंकि इसका साथी मेरे लिए ताहयात है। वफ़ा ने इसके गले में बाहें डालते हुए उसके सर से सर टकराते कहा, असफंदियार इसके इतने खूबसूरत इज़हार पर इसके होठों पर झुका था और घूट-घूट कर इसकी साँसें पीने लगा था। अ, राहते जान हो तुम मेरी, असफंदियार ने इस एक ही सतर में वफ़ा को सुरख़ुरू किया था, जिस पर वो अंदर सरशार हो गई थी और अपनी आँखें मूंद लीं। आने वाले कल से अनजान जो निहायत ही साज़िशों से भरा था। दिन गुज़रते गए, असफंदियार और वफ़ा की मोहब्बत दिन-ब-दिन बढ़ती चली गई, जिसे देखकर मोमिन की आँखों में मिर्चें भरने लगी थीं। इसका दिल दर्द से फट रहा था और इसे रह रहकर अपने खसारे का एहसास होता था। अब तो वो रातों में भी अंधेरे में सर पटकता रहता, रोता था वो वफ़ा के लिए, मगर वो खाली हाथ ही रह गया था। ना इसे कुछ मिलना था, ना इसे कुछ मिला था। वो एक कातिल था अपनी औलाद का, वो कातिल जो अपनी मोहब्बत का वो कातिल था, अपनी बीवी के एतबार का, मगर वो फिर भी वफ़ा की चाह के बैठा था। ऐसे ही एक दिन इसे मौका मिला था जब असफंद और वफ़ा का झगड़ा हुआ था। नाराज़गी की वजह से असफंद हवेली से बाहर चला गया था, तो वफ़ा को अपने कमरे में ज़बरदस्ती खींच लाया था और उसके सामने सरापा सवाल बनकर खड़ा था। मोमिन, ये क्या बदतमीज़ी है? वफ़ा इस पर चीखी। बदतमीज़ी नहीं है, मोहब्बत है ये मेरी, जिसे तुम बदतमीज़ी का नाम दे रही हो। नज़र नहीं आता पल-पल सुलग रहा हूँ मैं तुम्हारी मोहब्बत में, मगर तुम्हें तो ख़्याल ही नहीं मेरा। तुम तो बस इस असफंद के आगे-पीछे फिरती हो। कभी मेरा एहसास किया? आज मोमिन ने भी चीख-चीख कर इस पर अपने दिल का हाल बयान कर डाला था। देखो खाली हाथ रह गया हूँ मैं, कुछ नहीं बचा मेरे पास, माफ़ कर दो मुझे, पास आ जाओ मेरे, मेरे दर्द मेरे भर दो मेरी ज़िंदगी को मोहब्बत से, अपनी ज़िंदगी से मेरी तन्हाई को पुर कर दो, ताकि हम दोनों फिर से एक हो जाएँ। असफंदियार को ज़िंदगी से बाहर करो, और वो तुम्हारा नहीं है, ना ही तुमसे सच्चा प्यार करता है। देखा अब भी तुमसे मुँह मोड़कर चला गया। तुम मेरी हो, तुम्हें चाहने का हक सिर्फ़ मेरा है। याद करो तुमसे सच्ची मोहब्बत सिर्फ़ मैंने की है, इसने नहीं की, याद करो। तुम सिर्फ़ मुझसे मोहब्बत करती हो। इसने वफ़ा का चेहरा अपने हाथों के प्यालों में थामते हुए कहा, जिस पर वफ़ा इसके लहजे में खोसी गई थी। बाकी कुछ याद ना रहा था, बस याद था तो मोमिन, इसकी मोहब्बत और इसकी बातें। तुम सच कह रहे हो मोमिन, असफंदियार मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने देखा है तुम्हारी आँखों में पछतावा, और मेरे लिए मोहब्बत देर से ही सही, मगर तुमने मुझसे मोहब्बत कर ही ली। और सच तो ये है कि मैं भी असफंद से मोहब्बत नहीं करती। इसने मोमिन के सामने घुटनों के बल झुकते हुए अपने आंसू साफ करते हुए कहा, जो बेलगाम होते हुए चेहरे पे बिखरते चले जा रहे थे। इसने तो कभी मामन कभी ऐसा देखना नहीं चाहा था। इसने मोमिन को देखा जो घुटनों के बल बैठा रो रहा था, जबकि वफा की बात पर हैरत से अपना सर उठाते इसे देखने लगा तो रोना तो वो भूल ही गया था।
بہت مونگ دل لی تم ہمارے سینے پر وفا، جتنی بھی عیاشی تم نے کرنی تھی کر لی، مگر اب ہماری باری ہے۔ شہزادے نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب، کیا مقصد ہے تمہارا، اور ایسی بھی کون سی چال ہے جس سے وفا شان چت ہو سکتی ہے؟ اجالا نے تجسس سے پوچھا، اسے بھی وفا کے ہارنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ تم جانتی ہو وہ وفا کچھ بھی سہ سکتی ہے مگر اپنے شوہر پر شراکت برداشت نہیں کر سکتی جسے اس نے مومن میں نہیں کی تھی، مگر اب جب اس کا شوہر اسے دھوکہ دے گا کسی دوسری عورت کے ساتھ تو وہ مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی۔ اس نے شاطرانہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، جبکہ اجالا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ مگر اسود یار اسے دھوکہ کیوں دے گا، وہ تو اسے بہت چاہتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ اجالا نے نہ سمجھے سے کہا، کس نے کہا کہ اسود اسے دھوکہ دے گا؟ دھوکہ تو ہم وفا کی آنکھوں کو دیں گے، وہ بھی اسود کی لا علمی کو ہتھیار بنا کر، پھر دیکھنا یوں وفا اسے چھوڑ جائے گی اور ان کی محبت کا محل پل میں مسمار ہو جائے گا۔ وفا چاہے کتنا بھی اپنے شوہر پر یقین رکھتی ہو مگر دیتی ہمیشہ عورت کا ہی ساتھ ہے۔ وہ دونوں تیار تھیں اپنا ایک نیا شیطانی لائے عمل لے کر جو وفا کی زندگی کو طوفانوں کی زد میں لانے والا تھا۔ وفا نہیں جانتی تھی کہ اس بار وہ کس قدر بری طرح ٹوٹنے والی ہے کہ کبھی وہ دوبارہ کسی پر اعتبار نہیں کر پائے گی۔